Assalamu alaikum. The topic of today's discussion is VI editor. VI is a text editor that is used, that is specifically designed for Unix operating system. So today we will discuss how to use the VI editor, how to edit the text files using this editor. Okay, the first thing we need to see is that how to start a VI editor. So first I will log in as a root. So that there is no problem. Okay, how to start a VI editor? The command to start a VI editor is VI, and then you write the name of the file name. Whatever file you want to edit, you write the name of the file. And if you write the command with VI any file name and that file doesn't already exist, this command will create that file in your current directory, whatever directory you are in. So I will write VI file 1. So this is how it looks. This is the file where you can write the text, copy the text, move the text, or whatever you want to do, and then you will save it. Okay, it is simple text editor. Okay, the next thing that we need to discuss is the modes of the editor. This VI text editor works in two modes. One is called the insert mode and the second one is called command mode. In insert mode, how to change between those modes is when you want to go to the insert mode, you need to press I. I pressed I, and if you can see here, it says insert at the bottom of your file. Insert means that you are currently in the insert mode, and insert mode you can modify the text. You can write anything you want. This is first file. This is a text file. Whatever you want to write, you can write inside this mode during insert mode. The second mode is the command mode. The command mode is when you write a command, when you tell the editor what to do. You are not, whatever you are typing, that is not the part of the text, that is not the text you want to enter in your file, but whatever you are typing is a command. You are telling VI editor what to do. To move from insert mode to the command mode, press escape. You see the insert is gone. So when you want to go to the command mode, when you want to tell the editor what to do, you will write a command and the editor will do accordingly whatever the command you have written. So that is done using command mode. So there are two modes. The first one is the insert mode. You can go to the insert mode by pressing I. I pressed I and have moved to the insert mode. In insert mode, you can write text inside the file. You can write whatever you want. Okay, and to move back to the other mode, this in the command mode, you have to press escape and you will go back to the command mode. So these are the two modes. Third thing is quitting the VI editor. How to quit? So there are three commands. So whenever you are using a command, the first thing you need to do is you have to go back to the command mode. If you are in the insert mode and you write a command, whatever command you want, it won't work like this. It will be added as a text inside your file. So whenever you are writing a command, you have to go back to the command mode by pressing escape. So now I'm in a command mode. Now we will discuss how to quit the VI editor. So as you know, if you have used other text editor, if you use the Word file, one thing is you close it, you exit the Word file without saving, and one is with saving. Whatever you have changes you have made inside your file, you want those changes inside your file or you don't want those changes inside your file. Okay, so for the quit we need colon and Q. This is simple quit statement. And then with saving and without saving is if you want whatever you have written in the file, whatever the update you have made, if you want those changes saved, you will write WQ. WQ is used
quitting and saving whatever you have written. I press enter and I will again open the file by this, and we will have a file where all the changes जो भी मैंने लिखा था everything is there. The second is when you don't want the changes to be saved. For example, I have written this, sorry, I have to go to the insert mode first, and then whatever I write buffers, for example, and I don't want to save it. What should we do? I will go to the command mode, and inside the command mode I will write colon and Q. Q is for quit, and then exclamation mark. Exclamation mark is not. So you are telling the editor, do not save the changes. Okay, now I will open the file again, and you see the changes, the modification are not saved. So for the quit, we use two commands. The first one is colon WQ. इससे जो भी changes होती हैं वो save हो जाती हैं, and if you use Q with exclamation mark, the changes are not saved. Okay, these are the two options used to quit a file. The next thing is text buffers. Buffers, if you know, buffers are the temporary memory locations that are used to save the data temporarily. So if you are working on a file, वो फाइल में चेंजेस आपने टेक्स्ट लिखा है, वो आपने सेव नहीं किया, वो टेम्प्रेरी है, वो एग्जिट करने पे पता चलेगा कि आपने उसको मेमोरी में सेव करना है या नहीं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेव होती है बफर्स के अंदर. और यू आर डूइंग द कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस, तो वो जो कट होता है वो टेम्परेरीली उन बफर्स में स्टोर होता है. ये जो VI editor होता है, it uses the 36 special buffers and also a general purpose buffer that is used for temporary storage of words. Okay, और ये जो text editors होते हैं, they are numbered. इनका number होता है from A to Z, 26 characters होते हैं, और उनका number होता है A to Z and then from 0 to 9. ठीक है? Okay, now we will see how to move the cursor inside your editor. Again, we will write the command vi file name to open a file using the vi editor. Press enter and the file is open. Now for the cursor movement, the navigation sorry, these navigation keys are used up, down, left, right. ठीक है, एक तो ये कीज यूज होती हैं, और alternatives you can use J, K, H and L. The J is used to move to the down arrow. Again, I am in an insert mode. Now I will write J. If I am in insert mode, if I write J, तो वो J text file के अंदर लिखा होगा. Now I am pressing J, K, H, L to tell the editor to move the cursor. So that is a command. So for that I need to go back to the command mode. I will press escape. That moves me to the command mode. Now if I press J, see the cursor moved down, and then K is used to move the cursor up, K, and then H is used to move the cursor left, and L is used to move the cursor right. ठीक है, J, K, H and L, they are used to move the cursor. Okay, now I will quit. So I will again go back to the command mode, and then I will write colon WQ because I want to save my changes, and enter. Okay, the next thing is, again I will open the file. The next thing we will discuss is undo. Undo is control Z से जो हम करते हैं, whatever the last change we have made, आप उसको undo करते हैं. For example, यहाँ पे मैंने from लिखा है और let's suppose कुछ भी किया है.
So whatever changes I made, I want कि वो reflect now. So I insert mode में हूँ. So I want to undo few of the changes. So I will go to the command mode. Make sure whenever you are inserting a command, you make sure that you are in a command mode, not in the insert mode. ठीक है. अब undo के लिए क्या यूज होता है? undo के लिए simple, you have to press U प्रेस करेंगे. ये अगर आप देखें, 1 change before line 423 seconds ago, यहाँ पे नीचे आपको साथ में पता चलेगा. ठीक है, ये थर्ड लाइन पे आपने किया है. फिर उसके बाद बिफोर नंबर 2 ये 1 चेंज. ठीक है, ऑलरेडी एट oldest stage, oldest change. ठीक है, so U is used for undo. Whatever you have done, you don't want to do it and आप उसको रिवर्ट करना चाहते हो, so you will use the undo command. And undo command के लिए you have to go to the command mode and then you will press U for undoing. ठीक है, अच्छा, ओके. नेक्स्ट इज के डिलीट कैसे करते हैं. डिलीट कैसे करते हैं? अब अगेन डिलीट भी जो हम करेंगे तो वो हम कमांड्स के थ्रू करेंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन अ कमांड मोड. कमांड मोड में जब आप एक्स प्रेस करते हैं, सो जिस कर्सर के ऊपर, जिस कैरेक्टर के ऊपर कर्सर होता है, वो कैरेक्टर रिमूव हो जाता है. अब मैं यहाँ पे किया है, एक्स प्रेस किया है तो ये रिमूव हो गया. अगेन यहाँ पे एक्स किया है तो रिमूव हो गया. लेकिन मैं ये चेंजेस सेव नहीं करना चाहती. आई विल undo these changes. So X is used to remove one character. और कौन सा कैरेक्टर मूव होता है? जहाँ पे आपका कर्सर करंटली प्लेस किया जाता है, वो जो कैरेक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है by using X. Another command is DW. D जो होता है वो डिलीट के लिए यूज होता है और वर्ड W का मतलब है वर्ड. सो DW क्या करता है? आपने इंसर्ट मोड के अंदर गए हैं, आपने कॉलन DW लिखा है एंड यू प्रेस एंटर. सॉरी, कमांड मोड में विदाउट कॉलन आप लिखेंगे तो जो करंट कर्सर जिस कैरेक्टर के ऊपर हो, जिस वर्ड के ऊपर होगा, वो वर्ड रिमूव हो जाएगा. मैं अनडू करके आपको दोबारा दिखाती हूँ. अच्छा, सिंपल एक्स जो है वो कैरेक्टर को मूव करता है और DW की जो कमांड है वो वर्ड को. D इज फॉर डिलीट एंड W इज फॉर वर्ड. ठीक है, सो थ्री कमांड्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. इंसर्ट मोड में जाके मैं आपको बताती हूँ. एक एक्स की कमांड यूज करेंगे हम, एक DW की कमांड यूज करेंगे, एक DD की कमांड यूज होती है और एक होती है num DD. ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे. ये जो X की कमांड होती है, ये कमांड यूज होती है टू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कर्सर रख के X प्रेस किया है इन कमांड मोड तो T रिमूव हो जाएगा. यहाँ पे रख के किया है तो I रिमूव हो जाएगा. तो जहाँ पे कर्सर होता है दैट कैरेक्टर इज रिमूव्ड. बाय यूजिंग दिस कमांड DW, दिस इज डिलीट अ वर्ड. ठीक है, डिलीट अ वर्ड का ये मतलब है आप जहाँ पे कर्सर रख के इस कमांड को प्रेस करेंगे वो एक वर्ड, पूरे का पूरा टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा. पूरी की पूरी ये फाइल का जो वर्ड है ये रिमूव हो जाएगा. द थर्ड थिंग इज DD. जो DD की कमांड होता है दैट इज यूज्ड टू डिलीट एन एंटायर लाइन. आप जिस लाइन के ऊपर कर्सर रखेंगे एंड देन यू विल इंसर्ट द DD, तो वो पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है. एंड द सेकंड वन इज num DD. num DD क्या होता है? num की जगह आप कोई कैरेक्टर नंबर लिखते हैं और उतनी लाइंस करंट कर्सर से लेकर नेक्स्ट उतनी लाइंस क्या हो जाती हैं? रिमूव हो जाती हैं. ठीक है, अब मैं इनको वन बाय वन आपको इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ. अब यानी यहाँ पे कर्सर लिखा है, मैं कमांड मोड में गई हूँ, आई प्रेस X तो H रिमूव हो गया है. यहाँ पे गई हूँ, आई प्रेस X तो I रिमूव हो गया. सो ओनली वन कैरेक्टर इज रिमूव. देन आई प्रेस U, अनडू कर दिया मैंने ये दोनों चेंजेस. द नेक्स्ट इज DW. DW क्या करता है? वर्ड को रिमूव करता है. तो जिस वर्ड को रिमूव करना है आप वहां पे कर्सर लेके जाएंगे, कमांड मोड में जाएंगे एंड देन यू विल राइट DW, तो वो पूरे का पूरा वर्ड डिलीट हो गया. ये देखें, अब इससे आगे एक्चुअली जहाँ पे आप कर्सर रखते हैं वर्ड उससे आगे जो है वो मूव होता है. सो इफ यू वांट टू रिमूव होल वर्ड तो आपने स्टार्ट ऑफ द वर्ड के ऊपर कर्सर रखना है. प्रीवियस वाली फाइल को वो रीड नहीं करता. जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा उससे आगे वाले
वो वर्ड उससे आगे सारा रिमूव हो जाएगा। तो पूरा वर्ड रिमूव करना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कमांड मोड में जाएंगे, देन यू विल राइट TW, तो पूरा का पूरा वर्ड क्या है, रिमूव हो जाएगा। अनडू कर दिया मैंने। उसके बाद क्या है, DD। DD क्या करता है, पूरी लाइन को रिमूव करता है। सो यू विल पुट योर कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड यू विल go to the command mode and then you will press D, तो वो पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। अगेन मैं अनडू करती हूँ इसको। सो वी डिस्कस रिमूविंग अ कैरेक्टर, रिमूविंग अ वर्ड, रिमूविंग अ लाइन। लास्ट है नम dd। फॉर एग्जाम्पल हम करंट, अब ये जो नम dd काम करता है ये कर्सर से आगे वाली लाइंस करते हैं, प्रीवियस लाइंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कर्सर से आगे 3 लाइनें डिलीट करना चाहती हूँ। सो व्हाट आई विल डू, एस्केप मोड में जाके 3DD, ठीक है। अगर आप देखें 3 fewer लाइंस नीचे नजर आ रहा है, तो 3 लाइंस मैंने डिलीट कर दिए हैं। अनडू करती हूँ। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 है, तो 6DD, सारी लाइंस क्या हो गई हैं, 6 लाइंस क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। सो नम DD में क्या होता है, नम की जगह आपने वो नंबर ऑफ लाइंस लिखनी है जो आप रिमूव करना चाहते हैं, एंड देन DD में आप जो है वो डिलीट कमांड है। दैट्स हाउ यू यूज delete inside your VI editor, ठीक है। अगेन इंसर्ट मोड में जाके इसको मैं रिमूव करती हूँ। ओके, डिलीट हमने डिस्कस कर दिया। देन द नेक्स्ट इज कॉपी। हाउ डू वी कॉपी? कॉपी जो होता है in VI editor, the terminology that is used is called yanking. Like if you are copying a text, you will say that in VI editor we call it yanking. जैसे आपने you copied 5 lines, तो it will say the 5 lines has been yanked, ठीक है। अब कॉपी के लिए जो कमांड यूज होती है that is y। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे y कमांड और स्टार y और नम y, ठीक है। y क्या करती है और इसमें कॉलन यूज होता है, दैट्स द सिंटैक्स। अब कॉपी में आपने जहां पे जिस लाइन को कॉपी, अच्छा कॉपी के लिए ये 3 यूज होते हैं और पेस्ट के लिए P यूज होता है, ठीक है। अब जो भी चीज आपने कॉपी की है, जिस जगह पे कॉपी करनी है वहां पे कर्सर लेके जाएंगे, पहले कॉपी वाली कमांड प्रेस करेंगे और फिर जहां पे आपने पेस्ट करना है कर्सर वहां लेके जाएंगे एंड देन यू विल पेस्ट इट। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड आई वांट टू कॉपी इट। आई विल, अब मैं करंटली इंसर्ट मोड में हूँ, आई विल गो टू द कमांड मोड। कमांड मोड में जाके I will press command colon y और एंटर करूंगी, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। एंड देन जहां पे मैंने उसको मूव करना है, सॉरी पेस्ट करना है, वहां पे जाऊंगी एंड P को प्रेस किया है, तो वो अगर आप देखें फर्स्ट लाइन क्या हो गई है, पेस्ट हो गई है यहाँ पे। अनडू करती हूँ, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। दिस इज द लाइन दैट आई वांट टू कॉपी, उसके ऊपर मैंने कर्सर रखा है एंड देन आई प्रेस द कॉपी कमांड colon y एंड देन आई प्रेस एंटर। मैंने कॉपी कर लिया है। देन आई विल मूव माय कर्सर वेयर आई वांट टू पेस्ट, देन आई विल प्रेस P किया है, तो ये लाइन यहाँ पे क्या हो गई है, पेस्ट हो गई है। अनडू। सो द फर्स्ट वन इज colon y, जो कि एक लाइन को कॉपी करती है। द नेक्स्ट इज स्टार y। स्टार का मतलब होता है एनी, ऑल। तो स्टार क्या करेगा, आपका जितना भी टेक्स्ट है द करंट कर्सर से लेकर आगे का, उस सारे को क्या कर देगा, कॉपी कर लेगा। उसके लिए भी ये नम y वाली कमांड क्या करती है, ये एक स्पेसिफिक लाइन को कॉपी करती है। जैसे ये आपकी लाइंस है 1 2 3 4, तो आप इनमें से कोई एक लाइन कॉपी करनी है, तो उसके लिए हम नम y की कमांड यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ लाइन आपने कॉपी करनी है, आप उसके ऊपर जाते हैं, आप कॉलन और लेट्स सपोज मैं थर्ड लाइन कॉपी करना चाहती हूँ, तो 3y कैप्स लॉक है, अच्छा 3y
तीसरी लाइन कॉपी हो गया और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है आप वहाँ पे कर्सर लेके जाओ और P करोगे तो वो लाइन कॉपी हो जाएगी। तो मैंने 3 किया था तो थर्ड लाइन हैज बीन कॉपीड। इसी तरह अगर आप फर्स्ट लाइन कॉपी सेकंड लाइन कॉपी करना चाहते हैं 2y एंटर, तो सेकंड लाइन कॉपी हो जाएगी और इसको आपने जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर लेके जाओ, P प्रेस करो तो सेकंड लाइन वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। मैं अनडू करती हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा इसको बाद में देखते हैं स्टैटिक y को। सो कॉपी के लिए हम y की कमांड यूज करते हैं और पेस्ट के लिए हम p की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कट करना। कट कॉपी पेस्ट अनडू होता है। तो कट करने के लिए जो कमांड यूज होती है कट करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है डी, कॉलन डी। डिलीट जो था वो सिंपल डी था, उसमें हमने कॉलन नहीं यूज किया था, और जो डिलीट है कट है इसके लिए कॉलन डी होता है। ठीक है, अब कर्सर आपने यहाँ पे रखा है, कमांड मोड में की है और कॉलन डी प्रेस किया है, एंटर किया है, तो वो पूरी की पूरी लाइन क्या होगी, कट हो गया। अगेन आपने जहाँ पे इसको मूव करना है यू विल गो देयर प्रेस पी, तो वो पी वहाँ पे लाइन क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन आपने कॉपी करनी है। आप कर्सर लेके जाओगे, कमांड मोड में जाओगे एंड देन यू विल प्रेस कॉलन डी, ये उस लाइन को वहां से कट कर देगा। देन यू विल मूव द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट इट और देन यू विल insert it using paste it using p command. So this is cut and paste. And again मैंने undo कर दिया है जो भी मैंने changes की थी। insert mode में जाके I will modify the text as well. अच्छा, एक तो डी हमने कट के लिए एक कॉलन डी की कमांड यूज होती है और दूसरी कमांड जो यूज होती है वो कॉलन नम डी। डी में केस में आपका कर्सर के बेसिस के ऊपर से डिलीट होता है और जो नम डी है वो होता है डिलीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइन। नम में आपने जिस लाइन को कट करना है आप वहां पे सिंपल उसका नंबर लिख देते हो। फॉर एग्जांपल फोर्थ लाइन को अगर मैं रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं कमांड मोड में जाऊंगी, आई विल राइट कॉलन 4D एंटर, तो चौथी लाइन को इसने क्या कर दिया, कट कर दिया। अगेन आई विल राइट कॉलन 4D, अब 4D दूसरी लाइन है तो चौथी लाइन को इसने कट कर दिया। ठीक है, सो सिंपल कॉलन डी इज यूज टू कट द लाइन जहाँ पे आपका कर्सर होता है, और जो नम डी है इसमें जो नंबर ऑफ लाइन, जिस लाइन को आपने कट करना होता है वो नंबर आप लिखते हैं और वो लाइन जो होती है वो कट हो जाता है। ठीक है, अच्छा वर्स टू लाइंस के आपने लाइन की जो है अब करंट अभी तो 3 लाइन है ना, तो इसमें तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और लाइंस लिखते हो, हाउ आर यू, फाइल डजंट एग्जिस्ट, कोई भी टेक्स्ट वहाँ रहते हो। जब मल्टीपल फाइल्स होती है यू नीड टू नो, जैसे अभी हमने डिलीट फाइल किया है तो नंबर ऑफ फाइल लाइन नंबर आप देखते हो और उसके बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी नीड फाइल लाइन नंबर अटैच टू इट, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेट करते हैं लाइन नंबर। वो किस तरह सेट करते हैं, हम कमांड मोड में जाके कॉलन सेट और NU ये कमांड यूज होती है, इससे आपकी जो फाइल है उसके ऊपर जो लाइन नंबर है वो सेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद है सर्च एंड रिप्लेस। सर्च एंड रिप्लेस जो होता है जैसे वर्ड के अंदर होता है फाइंड एंड रिप्लेस, उसी तरह इसमें भी यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड। आप एक वर्ड है उसको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करेंगे एंड देन यू विल रिप्लेस इट। अब इसमें भी 3 कमांड्स हम देखेंगे। एक कमांड यूज होती है कॉलन %,
S, कुछ भी लिख देती हूँ मैं, from this to that, let's suppose। एक ये कमांड यूज होती है। दूसरी कमांड हम देखते हैं, कॉलन 3 नहीं, 3 में तो दिस है ही नहीं, 2 S बैकस्लैश दिस बैकस्लैश दैट। और तीसरी कमांड हम देखेंगे, कॉलन 1 2 3 सर्च चेंज दिस टू दैट। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है कि एंटायर फाइल्स, और जो एस है इट मींस कि सर्च द एंटायर फाइल। एंड जो नेक्स्ट दिस मैंने लिखा है, द फर्स्ट इज द वर्ड यू वांट टू रिप्लेस। वो जो चेंज वर्ड है वो यहाँ पे अब वो यूज हो रहा है उस चेंज वर्ड की बजाय। अच्छा, परसेंटेज मीन्स के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसको सर्च करना है। और जो एस है, एस में ये होता है, एस इज द कीवर्ड जिसमें होता है कि सर्च करना है। देन दिस इज द वर्ड दैट यू वांट टू सर्च एंड दैट इज द वर्ड जिसको आपने रिप्लेस करना है। जो नेक्स्ट लाइन है जिसमें मैंने कॉलन 2s लिखा है, इसका मतलब है कि सेकेंड लाइन के अंदर सर्च करो वर्ड दिस एंड रिप्लेस इट विद दैट। सो इस केस में इंस्टेड ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट सिर्फ सेकेंड लाइन के अंदर चेंजेस होंगी। और जो लास्ट वन है 1,3, इसका मतलब है इट विल सर्च द डॉक्यूमेंट फ्रॉम लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 3। इन 3 लाइंस में जो ये वर्ड दिस है इसको रिप्लेस कर देगा विद दैट। अभी मैं यहाँ पे एक और लाइन के ऊपर दिस लिखती हूँ ताकि फर्क पता चले। दिस इज अ कैट। ठीक है। ओके, अब मैं कमांड मोड में जाऊंगी। द फर्स्ट थिंग मैं सर्च करूंगी सब में, तो कॉलन परसेंटेज एस दिस एंड रिप्लेस इट विद दैट। एंटर किया तो आप देखिए जहां जहां पे दिस था उस पे क्या हो गया, दैट हो गया। ठीक है, 6 सब्स्टिट्यूशंस टोटल, 3 दफा लिखा था तो टोटल 6 सर्च और रिप्लेस की जो ऑपरेशंस हैं वो 6 अप्लाई हुए। अनडू किया है। अब सेकंड है, मैं इंसर्ट करती हूँ कॉलन 2s, तो सिर्फ सेकंड लाइन वाला चेंज होगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। दिस दैट। ठीक है, एंड आई विल प्रेस एंटर। तो सिर्फ सेकेंड लाइन में अगर आप देखें चेंज हुआ है, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ। अगेन अनडू एंड द लास्ट वन इज कॉलन 1 2 3 सर्च स्लैश दिस स्लैश दैट। एंटर किया है तो अगर आप देखें पहले 2 चेंज हुए हैं, तीसरे वाला चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज सर्च एंड रिप्लेस दैट इज यूज्ड इन VI एडिटर। अच्छा, एक और कमांड है एडिंग द न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए यूज होता है ओ। एस्केप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप ओ प्रेस करेंगे तो करंट कर्सर की जिस लाइन है उससे नेक्स्ट पॉइंट पे एक और लाइन क्रिएट हो जाती है। अब मैंने 6 के बाद 7 लाइनें क्रिएट करनी है तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखूंगी, ओ प्रेस करूंगी। सॉरी, क्योंकि मैं इंसर्ट मोड में हूँ तो मैंने ओ लिखा है तो वो राइट हो रहा है। सो फर्स्ट वी हैव टू गो बैक टू द कमांड मोड, देन आई विल प्रेस ओ, तो वहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब दोबारा कमांड मोड में जाके अनडू करती हूँ मैं ये दोनों। ठीक है, सो एडिंग अ न्यू लाइन इज डन बाय यूजिंग ओ। अच्छा, अब कॉपीइंग द होल टेक्स्ट, जैसे कंट्रोल ए होता है हमारे वर्ड के अंदर, वो कैसे यूज होता है उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू गो टू द विजुअल मोड। विजुअल मोड में जाने के लिए यू प्रेस वी, वो नीचे आपको विजुअल मोड नजर आ रहा है। ठीक है, विजुअल मोड में जाने के बाद देन यू हैव टू सिलेक्ट ऑल। जो कंट्रोल ए होता है वहां पे कंट्रोल ए करते हैं, देन कंट्रोल सी करते हैं फॉर कॉपी, एंड देन कंट्रोल पी करते हैं फॉर पेस्ट। वो चीज यहाँ पे कैसे होती है, फर्स्ट वी विल गो टू द विजुअल मोड बाय प्रेसिंग वी, देन वी विल सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट कैसे होता है, शिफ्ट
G के साथ, ठीक है। शिफ्ट G ने क्या किया है, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया है। देन we will copy all the text. We will go to the insert mode, sorry, command mode. You see, वो उस वक्त एरर आ रहा था, वो एरर भी अब यहाँ से चला गया है। अब 9 लाइन्स थी टोटल। यू कैन सी द मैसेज, द 9 लाइन्स हैज बीन yanked, नजर आ रहा है। 9 लाइन्स हैं, सारी लाइन्स कॉपी कर दी हैं। देन यू विल मूव द कर्सर where you want to paste and then you will write the command P और वो सारी की सारी लाइन क्या हो जाएंगी, पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट, अब वो जो एरर था पहले, जो कॉपी नहीं हो रहा था सारा, उसमें जो था कि इफ यू, मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। एस्केप मोड में जाके कॉलन स्टार y, इसमें भी सारी लाइंस कॉपी हो गई हैं। आई डोंट नो वो उस पर कमांड क्यों नहीं चल रही थी, लेकिन अब ये पेस्ट करूंगी तो ये सारे हो जाएंगे। अब मैंने कॉपी किए बगैर, सॉरी सिलेक्ट किए बगैर, मैंने सिर्फ कॉलन स्टार y से किया है, उस वक्त वो कमांड नहीं चल रही थी। अनडू करती हूँ, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। एस्केप करके कमांड मोड में जाके आई राइट कॉलन स्टार एंड y, यही कमांड थी। देन आई प्रेस एंटर, तो 9 लाइंस yanked आपको नजर आ रहा है। मैंने आपको ये कहा था कॉपिंग मींस yanked। अब जहां पे भी आपने पेस्ट करनी है वहां पे पीक प्रेस करेंगे तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पेस्ट हो जाएंगी। सो दिस इज कॉपिंग द होल टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने पूरी की पूरी लाइंस भी कॉपी कर दी हैं। अब ये है कि कॉपिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम अनदर फाइल। नाउ यू कैन कॉपी द, इसको मैं अनडू करती हूँ ताकि पता चले। कॉपिंग द टेक्स्ट फ्रॉम अनदर फाइल, हम एक फाइल में से पूरे का पूरा टेक्स्ट कंट्रोल ए करके कॉपी करके किसी दूसरी फाइल को खोल के उसमें कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ से एग्जिट करते हैं, ठीक है। फिर हम दोबारा देख लें कि हमारे जो चेंजेस हैं वो इसके अंदर हैं। ऑलराइट, अगेन वी विल क्विट इट। अच्छा, अब वी विल ओपन द एडिटर विद सम अदर फाइल, फाइल 2। अब ये फाइल क्या है, करेंटली एम्प्टी है, ठीक है। अब हमने वो जो फर्स्ट फाइल है उसका जो सारे का सारा कंटेंट है वो हमने इस फाइल के अंदर लेके आना है, ठीक है। तो वो कैसे लेके आनी है, हम कमांड मोड में जाएंगे। कमांड मोड में वी विल राइट कॉलन R और आगे फाइल का नाम, जिस फाइल का कंटेंट हमने लेके आना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे file1 एंड देन वी विल प्रेस एंटर। तो उस फाइल का पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते तो हम लिखेंगे कॉलन Q, सॉरी कॉलन एस्केप मोड, कॉलन Q एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। आपने सेव नहीं किया, file2 is empty. Again you want to copy the content, you will write colon command mode में जाके colon R और फाइल नेम file1, वो फाइल सेव हो गया। नाउ यू वांट टू सेव फुल कमांड मोड कॉलन WQ, सेव हो गया। अब आप फाइल 2 को व्यू करें तो फाइल 2 में वो सारा कंटेंट मौजूद है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, अब हमने कॉपी भी कर लिया है। देन नेक्स्ट इज हाउ टू नेविगेट थ्रू वीआई एडिटर। दैट इज आल्सो सिंपल। यहाँ पे भी जब आप कमांड मोड में जाके जो कमांड लिखते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आप कॉलन के बगैर लिखते हैं जो आपने उसके अंदर टर्मिनल के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे आपने उसके साथ कॉलन के साथ वो कमांड लिखनी है। अच्छा, जैसे pwd होती है फॉर करंट डायरेक्टरी, तो इट विल टेल यू आप करंटली किस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और कोई कमांड है कि आप चेंज डायरेक्टरी वाली कमांड भी कर सकते हैं, लाइक करेंटली मैं होम नुजरत में हूँ तो आई वांट टू गो टू द होम फाइल, सो आई विल राइट कॉलन cd होम। ओके, कमांड फेल बिकॉज मैंने रिलेटिव पाथ दिया है
I need to give the absolute path colon cd होम डायरेक्टरी में चला जाएगा। होम डायरेक्टरी में जाके अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई फाइल बनाती हूँ, यहाँ पे जो फाइल बनाने का कमांड है दैट इज नॉट टच, यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉलन और टैब की कमांड यूज होती है TABE, और आगे कोई भी अब फाइल 1 और 2 मैंने बना ली थी। नाउ आई लेट्स सपोज मैं फाइल क्रिएट करती हूँ फाइल 3, फाइल 3 क्रिएट हो गई है। यहाँ पे लेट्स सपोज आई से हाय एंड देन आई सेव इट। ठीक है, इसको भी मैं क्विट करती हूँ। नाउ यू सी मैंने करंट डायरेक्टरी के अंदर रह के ही फाइल बनाई थी, लेकिन मैंने चेंज डायरेक्टरी किया है यूजिंग VI एडिटर, तो आप फाइल को चेक कर सकते हैं वो किस डायरेक्टरी के अंदर बनी है। अब यहाँ पे जब मैं लिस्ट करती हूँ तो देयर इज फाइल 1 एंड फाइल 2, देयर इज नो फाइल 3 जो मैंने अभी बनाई थी। यहाँ से जब आप जाएंगे होम, अब आप देखेंगे तो आपकी फाइल 3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो आपने VI एडिटर के थ्रू चेंज किया है डायरेक्टरी एंड देन यू क्रिएटेड अ फाइल, तो वो आपकी उस जगह पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब एक और कमांड यूज होती है, दोबारा फाइल खोलिए, एस्केप कॉलन 5 जब लिखते हैं कोई भी नंबर जब आप लिखते हैं तो कर्सर इज मूव टू दैट स्पेसिफिक फाइल, स्पेसिफिक लाइन में। पहले इसको लाइन नंबर दे दो सेट। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ कॉलन 3 लाइन पे जाना है, एंटर, तो कर्सर विल मूव टू लाइन 3, एस्केप कॉलन 2, the cursor will move to the line 3. So this command is used to move the cursor or going to a specific line. अच्छा, the next is shift. शिफ्ट का जो बटन होता है वो उसमें तो टैब से यूज होता है आपके वर्ड में के अंदर। यहाँ पे शिफ्ट कैसे यूज होता है, जिस भी लाइन को आपने शिफ्ट करना है आप वहां पे कर्सर रखेंगे एंड चलो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कर्सर और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन नंबर। कर्सर की बेसिस के ऊपर जो होता है हम कॉलन और ग्रेटर देन का साइन लेते हैं, और जब आपने स्पेसिफिक लाइन करनी होती है तो कॉलन नम। ठीक है, कमांड मोड में जाते हैं। फोर्थ लाइन को मैंने अगर मूव करना है, I will put my cursor here, then I will go to the command mode and I will write colon greater than enter, तो ये लाइन क्या हो जाती है टैब हो जाती है। और सेकंड इज नम, इसमें आपने नंबर लाइन नंबर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन नंबर 9 को मूव करना है, शिफ्ट करना है, तो आई विल राइट colon 9 greater than, so the 9th रो है या लाइन है वो क्या हो जाएगी शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज शिफ्टिंग। अच्छा, द लास्ट इज जस्ट सर्चिंग। पहले जो हमने किया था वो सर्च एंड रिप्लेस किया था। सिर्फ सर्च करने के लिए क्या कमांड यूज होती है कॉलन ठीक है, सर्च करना है। ठीक है, जो वर्ड आपने सर्च करना है बैकस्लैश के साथ आप सिंपल वो वर्ड लिख देंगे तो वो आपको कर्सर आपको वहां पे ले जाएगा। अगेन मैं आपको करके दिखाती हूँ। कमांड मोड में आई विल राइट बैकस्लैश और फर्स्ट, तो कर्सर मूव हो जाएगा जहां पे फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज सर्च कमांड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस करें और इन कमांड्स को मेमोराइज करने की कोशिश करें और यूज करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।